अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आ गए। वालेकुम सलाम। जी जी सर। कितने स्टूडेंट्स कितने हैं अभी? 8 हैं, 8 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं सर। 8 पार्टिसिपेंट्स बहुत कम क्यों नहीं? 2-3 मिनट देख लेते हैं। अगर ये 8-10 ही पार्टिसिपेंट रहते हैं तो क्लास को क्लोज कर देते हैं। जी जी श्योर। ठीक है ना? If the attendance is not more than 30 or 30 plus, so we will not be continuing class. Okay. श्योर सर। Wait for 5 minutes. अभी 17 स्टूडेंट्स ने क्या करें? 17 students are there. That is, I think, a very difficult me to teach. दो तीन मिनट देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं।
Assalamu alaikum. Ready, students? शेयर हो गई है? जी सर। कोई स्टूडेंट बोल दे। जी सर, हो गई है। कोई एक स्टूडेंट और कर ले ताकि मुझे यस सर, हो गई। कौन है ना स्टूडेंट? जी यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई। हो गई। ओके, कोई एक स्टूडेंट कौन है जो बोलेगा? रिकॉर्डिंग जो है वो कोई ये बैठा है यहाँ पे, एक नाम इसका कौन कौन देख रहा है इसको अभी रिकॉर्डिंग को? रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दें। पहले जो हमने रोकी हुई थी रिकॉर्डिंग ऑन अब करें, बाकी ना करें, पिछला जैसा रिकॉर्ड ना करें। कोई है या नहीं? कौन देख रहा है इस वक्त? ये या बिल्कुल लावारिस सही है? Sir, I am watching it. And sir, recording is also on. Who is watching? What's your name? Rabia. Rabia, you are the admin here. Yes, sir, I am the admin here. When did the recording start? Sir, it started a few minutes ago, but I'll edit the lecture and then it will be posted when you said that start the recording. Exactly, the time which wasted should not be counted in the lecture now. Otherwise, student will get confused. All right, sir. Okay. All right, sir. All Take right. care. Should we start? Yes, sir, we can start now. Okay. The screen is not coming up to me. I don't know why there is a problem. I cannot see the screen. Even I have shared. Sir, your screen is visible to us. But it is not visible to me. Why is it so? Sir, you can join again. It might be visible then. Okay, I'm leaving, then I will join again. Okay. All right, sir. Should we start? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, sir, we are good to go now. ओके, तो आपको एक अच्छी सी बात बता दें कि पाकिस्तान को अभी इसी वीक में पाकिस्तान को पता है इंटरनेशनल ओलेव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया है. दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. दैट हैज टू बी, इफ इट इज इंक्लूडेड इन योर पेपर, the examiner will be more happy because it is a good news and it is a new news and it has to be added by the student. Okay. All right, sir. So what are the benefits from this particular product? We can say the olive tree. We will be getting so many benefits. Number one, we will be getting the international support, international seeds, and we can produce the oil from it. This is one of the good thing which is very good for Pakistan point of view, because we are short of oil. We are hungry of oil, you know. Yes, sir. The detail of this particular olive I will be sending you on my status of WhatsApp, and along with the video. I hope that would serve the purpose. Okay. Sure, sir. So this has to be included when you are writing your current affair papers and the Pakistan affair papers. Okay. Number one, if we talk about the paper of Pakistan affairs, we always see
there is a question on economics of Pakistan in different shapes. Sometimes it comes into the energy sector, sometimes it comes into the shape of water problem, water issues, sometimes it is in the form of budget, sometimes it is in the form of economic problems, sometimes it is in the form of budget deficit, sometimes it is in the form of trade deficit. The answer is same. The answer is same. Are you getting me? Yes, sir. If you have any problem of the language, I can change my language. Or if Yes. you are with the if you're comfortable with the English, I will go with the English. सर आप It is उर्दू a- में कह देंगे सर वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. उर्दू में कर दूंगा. ओके, देखिए आपका ये कहना ये है मुझे, देखिए आप ये याद रखिएगा, one thing should be very much clear and crystal in the paper you should be writing in English. Okay, तो मैं इसका आपको PDF भेज देता हूँ. मैंने अभी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप किसने देख लिया? जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक्स पे, इस आपने देखा नहीं? देखा किसी ने, स्टूडेंट ने? सर इससे देखा है वो इससे पहले वाली वीडियोस देख ली, ये वीडियो नहीं देखी थी मैंने. आई थिंक 2 दिन पहले आई थी, आपने सेंड की थी, बट स्टिल आई हैवंट वॉच्ड. you should have watched this. देखिए वजह इसकी बताऊं, मैं 3 चीजों को कवर करना चाह रहा हूँ. एक तो आपका एसए में हमने ये तय कर लिया आपसे लास्ट टाइम क्लास में कि एसए में आप लोग 3 टॉपिक्स आते हैं. कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं एसए में? आता है जेंडर स्टडीज पे आता है, एक इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान पे आता है, और एक तालिबान पे आएगा. देखिए तालिबान पे आप लिख नहीं सकेंगे कुछ, तालिबान इतना डायनेमिक्स है उसके कि रोजाना वो चेंज हो रहा है. तो आप अगर कुछ लिख के आते हैं और उसके रिजल्ट्स तालिबान के कुछ और आ गए 3-4 महीने बाद, तो आपका पेपर जो होगा स्टेल हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं? आपके व्यूज खत्म हो जाएंगे. वो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा वो सब चीजें, वो इतना अफगानिस्तान इश्यू इतना ज्यादा वेरिएबल है, इतना ज्यादा डायनेमिक है कि वो इतना रोजाना चेंज हो रहा होता है. तो उसके ऊपर मैं अभी कोई बात कर नहीं सकता. हो सकता है मैं फरवरी में जो चीज आपको पढ़ाऊं, मार्च में वो चीज बदल जाए और एग्जामिनर आपके पेपर अप्रैल में चेक करे, वो टोटल आपकी जो पेपर का रिजल्ट हो वो कुछ और हो. तो एग्जामिनर कहेगा ये तो गलत कह रहा है. मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान और जेंडर स्टडीज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो जेंडर स्टडीज के लिए तो आप जेंडर स्टडीज का पेपर पढ़ रहे हैं, मिस साइमा पढ़ा रही है आपको, और जासिया पढ़ा रही है, और बहुत लोग आपको पढ़ा रहे हैं. लेकिन यह है कि वही उसी को आप कंक्लूड कर दीजिएगा. और एक तरीका और है कि आप पाकिस्तान इकोनॉमिक्स का पेपर जो पाकिस्तान अफेयर में भी आएगा, लाजमी आएगा, और एसए में भी आएगा, और करंट अफेयर में भी आएगा. ये तीनों जगह ये पेपर आपका काम आ जाएगा. यस नो? हो सकता है करंट अफेयर में आपको पूछ सकता है ये कि पाकिस्तान को अभी इंटरनेशनल मेंबरशिप मिली है, तो किस पे मिली है आपकी? अभी मैंने आपको बताया ओलिव जो है प्लांट होता है, जैतून जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें मेंबर बना दिया गया. इंटरनेशनल जो इदारा है इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल, उसके आज हम कल परसों में मेंबर बने. तो ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत इससे बहुत बड़े फायदे हैं पाकिस्तान को. ये आपको डिस्कस करेंगे हम लेटर ऑन. ये बात समझ में आई नहीं आई? जी सर आ गई. ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये आपकी करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने अभी ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ जाएं. इसकी डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा जी थोड़ी सर. दिनों में. वीडियो बना दूंगा इसकी डिटेल पूरा. मैंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है, एक मिनट डैम्स के ऊपर. बताइए, मैं आपको बताऊं कि अगर इकोनॉमिक्स पे सवाल आ जाए, कोई भी सवाल इकोनॉमिक्स पे आ जाए, किसमें देखिए सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान अफेयर में एक सवाल इकोनॉमिक्स पे आएगा. करंट अफेयर में बहुत सारे सवाल आएंगे इकोनॉमिक्स पे, और ऐसे में भी एक सवाल इकोनॉमिक्स पे आता है. 3 हो गए आपके. मुझे फौरन जवाब दे, जो मुझे साथ है ना, वो मुझे फौरन जवाब दे. मुझे ढील आदमी नहीं पसंद. सर हो गए सर, समझ आ गई सर. अब आपके पर ये तीनों सवाल हैं आपके, इनके आंसर एक ही है. जो पाकिस्तान अफेयर में एक सवाल आता है, पाकिस्तान अफेयर में जो है 1 क्वेश्चन होता है हमेशा किसके ऊपर? 1 क्वेश्चन ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, लाजमी है. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक Yes, sir. पाकिस्तान किस शक्ल में होता है? गैस की शक्ल में होता है, वाटर की शक्ल में होता है. गैस प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, वाटर है, ऑयल की शक्ल में, बजट डेफिसिट की शक्ल में. आज ये चीजें हम समझनी है. बजट डेफिसिट की शक्ल में,
या ट्रेड डेफिसिट चीज होती है, ट्रेड डेफिसिट की शक्ल में, ठीक है, और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की शक्ल में, ठीक है ना। ये इस शक्ल में एक सवाल आता है, डैम्स की शक्ल में आता है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका आता है, आंसर इसका एक ही है। समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर आ रहा है। आंसर एक ही है कि अब आपका गैस का इश्यू है, तो गैस देखें, मैंने गैस के ऊपर एक वीडियो बनाई है अलग से, वो आपको मिल जाएगी। वाटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो आपको मिल जाएगी। ऑयल के ऊपर भी वीडियो है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब इकोनॉमिक पे बात करते हैं ना, जब आपसे वो गैस की बात करता है, तो आप क्या उसमें सिर्फ गैस के बारे में लिखेंगे? देखिए आपके यहाँ जो बिजली बनती है, हम अगर बात करें, आपकी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है किससे? आप लोग बनाते हैं कोयले से, ठीक है, कोयले से। आप बनाते हैं गैस से, आप बनाते हैं ऑयल से, फर्नेस ऑयल जो होता है, आप बनाते हैं। इसके बाद आप बनाते हैं किससे? वाटर से, जैसे स्टीम उसके से। बाद वाटर, स्टीम, स्टीम समझते हैं ना, वाटर को कहते हैं। स्टीम से फिर आपका आ गया विंड मिल से, फिर आप बनाते हैं सोलर से। ये तीन है, ये तीन जो है ये सस्ते सोर्स हैं, और ये तीन बहुत महंगे हैं, क्योंकि इन तीनों को, गैस हो, ऑयल हो या कोल हो, इसको आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद बिजली बनाते हैं। जो बिजली है वो बहुत महंगी पड़ती है आपको, क्योंकि आपकी चूंकि इसी महंगी पड़ती है कि डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो डॉलर का रेट के बढ़ जाने की वजह से, अब यूं समझ लें, छोटी सी आसान बता दूं आपको, मुझे आप लोगों की इकोनॉमिक्स किस मेयार की है कि डॉलर के महंगे होने से लोग कहते हैं अक्सर क्यों महंगाई क्यों होती है। देखिए मिसाल के तौर पे, अगर $1 जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान का 1 रुपया और यूएसए का $1 तकरीबन बराबर थे। जब कायद-ए-आज़म ने आपको पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान का 1 रुपया और यूएसए का $1 तकरीबन बराबर थे, और यह थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करते हुए ये डॉलर बढ़ना शुरू हुआ। तो आप ये समझें कि उस वक्त अगर फर्ज करें हम यूएसए से 1 किलो, आसान करना चाहो, आसान सादा लैंग्वेज, लीटर नहीं बोल रहा, आप में से बहुत सारे बच्चों को लीटर का मतलब नहीं पता होगा। 1 किलो जो ऑयल था, फर्ज करो 1 किलो ऑयल, 1 किलो ऑयल उस वक्त, पहले 1 किलो ऑयल जो था वो यूं समझ, 1 किलो ऑयल नहीं बल्कि क्या रखूं, 1 किलो रखूं मैं आपको, अमेरिका से क्या लिखूं, 1 किलो समझो, यूं कर देता हूँ ऑयल समझाने के लिए। 1 किलो ऑयल जो था वो $1 का था, $1 का था। हमें क्या करना पे करता था उस जमाने में, हमें $1 ₹1 देना पड़ता था, कि हमारी जो डॉलर और रुपया दोनों बराबर था। तो $1 में अगर 1 किलो तेल आ रहा है, आसानी के लिए समझा रहा हूँ, तो हमें 1 ही रुपया देना पड़ता था, क्यों? डॉलर रुपया दोनों बराबर थे, इक्वल था। अब 1 किलो जो है, अब तेल जो है, ऑयल जो है, ऑयल 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 पहले $1 का ही है, अभी तक $1 का है, लेकिन हमारा रेट हो गया है कितना, बढ़ के हो गया है हमारा रेट 170। अब रुपीस, अब क्या हुआ, अब हमें 1 किलो तेल मंगाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? 170 रुपए। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कितने देने पड़ते थे? 1 रुपया। तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिरी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डी वैल्यू। आपकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होने से हमारे लिए मुसीबत बन गई। पहले हम 1 रुपया देते थे और 1 किलो तेल मंगा लेते थे, क्योंकि तेल था $1 का 1 किलो, 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 और रुपया और डॉलर दोनों बराबर थे। तो हमें 1 किलो तेल के लिए $1 देना पड़ता था, और $1 1 रुपया दोनों बराबर थे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। आर यू गेटिंग मी? यस नो? Yes, sir. क्या मैंने क्या कहा, कोई समझा देगा?
सर आप ये बता रहे हैं सर, मैं बोलूं सर? बोले हाँ जी सर, आप ये बता रहे हैं कि जैसे कि जो ऑयल का बता रहे हैं कि ऑयल जो है वो क्यों महंगा हुआ, और ऑयल की वजह से जो है वो डॉलर महंगा होता है। तो आपने बताया कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त डॉलर और जो मतलब कि हमारी करेंसी और यूएस की करेंसी दोनों बराबर थी, तो हमें जो है वो तेल खरीदने में आसानी होती थी। तो अभी जब भी तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो नहीं, आगे मैंने जितने भी ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं किया। डोंट ट्राई टू बी वेरी एफिशिएंट। जितना मैं बोलूं, देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एफिशिएंसी। ओके समझ सर। में जो मैंने बोला है वो मैंने अल्फाज रिपीट करने को कहा है। मैंने अपने आप से नहीं कहा कि आप अपनी राम कहानी सुनाएं। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। मैं उठ के चला जाऊंगा, मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। समझ में आ गया? जो मैंने क्या कहा है वो बताएं। मैंने कहा जब पाकिस्तान बना था तो 1 उस वक्त रुपी बराबर था कितना? $1 के। डॉलर के दोनों बराबर थे। और 1 किलो, आसान समझाने के लिए मिसाल दी थी मैंने, 1 किलो ऑयल जो था वो $1 का था। तो हमें कितना, अगर हमें तेल खरीदना पड़ता के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते थे बताएं? 1 रुपया सर। क्यों बताएं? सही कह रहे हैं आप, क्यों? तो 1 रुपया ही देना पड़ता था। सही कह रहे हो, क्यों? वजह बता दो। वजह इसलिए कि हेलो? सर रुपया बराबर था डॉलर के। इतना सा आंसर है, रुपया बराबर था रुपया। जी नहीं आया समझ में? यस सर, समझ में आया। क्या? जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, फास्ट करो भाई, बोलो। कोई बोलने वाला नहीं है, सब बह रहे हैं, क्या हो गया? सर यही आपने लिखा है कि डॉलर जो था जो पहले बराबर था 1 रुपीज के, जब कायद आजम के दौर में, ठीक है। और अभी जो है वो डॉलर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें ऑयल जो मतलब बराबर थी तो हम लोग को 1 रुपए का ऑयल मिलता था, लेकिन अभी 170 का इसलिए मिलता है क्योंकि डॉलर बढ़ चुका है इस वजह से। डॉलर नहीं बढ़ाए, हमारे रुपए की वैल्यू सर बढ़ रही है। रुपए की वैल्यू, हाँ ठीक है, जी सर। तो समझ में आ गया, हमारे रुपए की वैल्यू मुसलसल गिरती रही है और अब 170 पे आ गई है। ठीक है ना? यस नो? यस सर। यस सर। तो ये यस सर। समझ में आ गई कि अभी ये खुदा ना Yes, खास्ता sir. अगर रुपए की वैल्यू और गिरेगी तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हमें महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। अगर फर्स्ट करो रुपया जो है वो 100 खुदा ना खास्ता 180 रुपए का हो जाए तो फिर हमें 180 रुपए देने पड़ेंगे $1 के। तो करेंसी क्या दुआ मांगते हैं? करेंसी गिरे या आपकी एक जगह सेट हो जाए? सेट हो जाए। सेट हो गया। एक ठीक है जगह ना? सेट हो जाए सर। एक जगह। तो आप देख रहे हैं कि गिरनी चाहिए। डॉलर तेल की सर कीमत गिरने के भी गिरने के भी फवायद है ना सर। गिरने के फवायद हैं, लेकिन फवायद से ज्यादा नुकसानात हैं। फवायद एक ही है कि आपको एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती है, लेकिन सर नुकसानात उसमें ज्यादा हैं। जी 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 सर, मैं ये यस। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो ये है कि आप देखें आपका मुल्क जो है वो आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा है मसला है वो आप गैस आपके पास नहीं है। सर्दियों में आपके पास गैस नहीं होती है, और जब आप सर्दियों में गैस दुनिया भर में शॉर्ट होती है तो सर्दियों में गैस खरीदते हैं आपको, तो गैस आपको महंगे दामों में मिलती है। और डॉलर वैसे ही, और एक तो दो दो आपको चोट लगती है। एक तो डॉलर आपका बढ़ा हुआ है, दूसरा गैस भी महंगी हो गई है। तो आपको क्या चाहिए कि आप गर्मियों में गैस खरीदें। तो हमारा जवाब ये होता है कि गैस गर्मियों में हम नहीं खरीद सकते, कि गैस को हम स्टोर कहाँ करेंगे। तो दुनिया में हमने जब स्टडी की तो मैंने आपको बताया वीडियो में, देखिएगा कि 3 तरीके हैं गैस को सेव करने के। एक तो ये कि हमारे वो पानी के जहाज जो अब नाकारा हो गए हैं,
वो गैस लेके आते हैं, अब वो पुराने और बुढ़े हो गए, उन जहाजों को हम क्या करें, इस्तेमाल करें, उनके अंदर जो है गर्मियों में गैस लाके भर दें। एक तो तरीका ये है। एक ये है नमक की जो माइंस होती हैं उसके अंदर भी गैस को भरा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। नंबर 3 ये जो आपकी अपनी गैस लाइंस हैं जो खाली पड़ी हुई हैं सर्दियों में, तो उसमें भी इनको में गैस डाली जा सकती है। तो गैस आप क्या करें कि गर्मियों में खरीदें, गर्मियों में खरीदने के बाद, क्योंकि गर्मी में आपको सस्ती मिल जाएगी गैस, और आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें। तो गैस को स्टोर करना सीखें। हमें पाकिस्तान को गैस अगर चाहते हैं हम लोग, तो हम कोशिश करें कि हम गैस को गर्मियों में खरीदें बाहर से। दूसरा ये कि हमारे पास गैस के अपने ज़खायर हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो, उसमें बहुत ज़्यादा गैस है, लेकिन हम उसमें गैस निकाल नहीं पाते। उसकी वजह 2-3 है। एक तो वजह ये है कि हम गैस में निकालने की हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हमें बाहर की कंपनियों को बुलाना पड़ेगा, उनके पास गैस की निकालने की एक्सपर्टीज होती है। नंबर 2 पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कि पॉलिटिकल इश्यूज ये हैं कि हमारे यहाँ जो जिन इलाकों में गैसेज हैं, वहाँ के सियासतदान और वहाँ के लोग हमें गैस निकालने नहीं देते। इसमें हमें अपनी आर्मी की मदद चाहिए होगी, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए गैस निकालने में। ठीक है ना? तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं गैस के, जो हमारे पास गैस के ज़खायर हैं, लेकिन हमने गैस के ज़खायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वजह ये है। सर एक और भी तो है सर, ये टापी का जो था सर ईरान के साथ, अगर उसमें चले जाते तो काफी बेहतर नहीं होता, जो आज हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। पीस हाँ, पाइपलाइन। हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं वजह ये है ईरान के साथ जो है। लेकिन ये जो अपने इसके अलावा जो है हमारे पास गैस के ज़खायर, अपार्ट फ्रॉम, मैंने गैस पे वीडियो बनाई है, तो जरूर देखिएगा। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर को मैं पूरा उठा रहा हूँ, उनका पेपर और पाकिस्तान अफेयर में। देखें, अब सवाल गैस पे आएगा तो आपने सिर्फ गैस पे नहीं रहना है कि गैस 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 सुना के खत्म कर दें। गैस से आप करते क्या है? गैस से आप बिजली बनाते हैं, याद रखिएगा। गैस का इस्तेमाल आपका बिजली में है, गैस का इस्तेमाल आपका क्या नाम है इंडस्ट्री के अंदर है और घरों के अंदर है। 3 गैस के इस्तेमाल है, मिनिमम तो 3 इस्तेमाल है। इंडस्ट्री में है, बिजली बनाने में है, और घरों में। तो गैस जो है वो इस वजह से सर व्हीकल्स में भी तो है। इसमें व्हीकल्स गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं ना, गाड़ियों का भी इस्तेमाल रखने, चौथा इस्तेमाल। तो गाड़ियों में भी हम गैस इस्तेमाल करते हैं। तो 4 इस्तेमाल हमारे मेजर हैं गैस के। तो गैस जो 4 जगह इस्तेमाल हैं गैस के, और मेजर इस्तेमाल जो है वो बिजली बनाने में है। गैस को हम प्रेफरेंस देते हैं कि गैस से बिजली बनाएं। तो आपको ये कहना है कि हमें करना ये पड़ेगा कि गैस के जो कुएं हैं हमारे, उसमें प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे कॉम्पिटेंसी इश्यूज हैं, इसको हम सही करें। उसमें गैस के अंदर मैंने वीडियो बनाई है, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, तो आप गैस के अंदर बताएंगे कि गैस के मसाइल क्या है। दूसरा ये है कि गैस के अंदर अगर आप गैस लेके आते हैं, गैस के ज़खायर आप निकालते हैं, तो इसमें बहुत सारी जॉब्स निकल आएंगी, क्योंकि जो लोग गैस निकालेंगे वो लोग, उनको जॉब मिलेगी, और जो लोग इसमें काम करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। देखिए, आपको ये चाहिए कि गैस के लिए जो कुएं हैं, उनके लिए आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को या लोकल इन्वेस्टर्स को कहें कि गवर्नमेंट ये कहे कि भाई आधे पैसे हम लगाएंगे, आधे पैसे आप लगाओ, और इसमें 50-50 कर लो। तो बिजनेसमैन को लेके आए इसमें, इस फील्ड में, और बिजनेसमैन को श्योरिटी दें कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलेगी। आपके सामने है कि हमारे चाइनीज जो इंजीनियर जो थे, दासू डैम बना रहे थे, 8-9 इंजीनियर्स को मार दिया, जिसकी वजह से चाइना बीच में हट गया था। जुलाई से काम बंद हो गया था, लेकिन पिछले हफ्ते काम दोबारा शुरू हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, दासू डैम दोबारा ऑपरेशन में आ गया। देखिए, अब आप क्या कहेंगे गैस के साथ अब डैम का क्या रिलेशनशिप है? देखिए, डैम का ये रिलेशन है कि अगर हम डैम बना देंगे ज्यादा, तो हमें गैस से बिजली बनाना खत्म हो जाएगा। तो गैस का जो प्रेशर है हमें कि हम गैस को इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हम वाटर से बिजली बना रहे होंगे। अब देखिए, मसला सारा ये है कि हम वाटर बनाने के लिए हमें जो ये ग्रीन हाउसेस का भी वो जो पाकिस्तान ने भी कहा है कि नियरली जो सऊदी अरब में मीटिंग में कहा गया कि हम इस पे इन्हिसार कम करने जा रहे हैं, कोल और गैस पे हम नहीं बनाएंगे 230 के बाद, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। देखिए, हमने, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। तो अब हमारे पास जो है गैस से, पहले तो गैस की बनाएंगे, हमें वाटर से, जब मैंने कहा जब हम वाटर से बिजली बनाएंगे, तो हम, तो मतलब हम
वाटर तो बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, वाटर से बिजली हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। ऑयल से बिजली बनाना भी अब पोल्यूशन क्रिएट करती है वेदर में। गैस से बिजली बनाना वेदर के लिए नुकसानदेह, क्लाइमेट के लिए नुकसानदेह। और कोयले से बिजली बनाना तो बहुत खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, कोयले से जो लोग बिजली हम बना रहे हैं कोयले से, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया में गर्मी आ रही है। लेकिन अगर आप देखें, मैं फिर ये बात कहूंगा कि मैं गलत बात कह रहा हूं, लेकिन मैं बात गलत कह रहा हूं अभी, लेकिन फिर भी सुन लें कि कोयले से बिजली बनाने के लिए गवर्नमेंट दुनिया में अभी लोग खामोशी आ गई है थोड़ी सी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें नाजायज फायदा उठाए और जितना ज्यादा कोयला इस पाकिस्तान के पास है, जो कि अच्छा कोयला नहीं है जो गर्मी पैदा करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी एनर्जी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, उस कोयले से मैक्सिमम बिजली बना ले, जितने साल यानी 4-5 साल लपेट देगा इसी तरह से, तब तक ये कोयले के ऊपर इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं वो खामोश हैं अभी। तो पाकिस्तान को चाहिए इससे फायदा उठाएं। क्या अमेरिका ने कोयले से बिजली नहीं बनाई? क्या रशिया ने कोयले से बिजली नहीं बनाई? बनाई, सबने बनाई। अब वो लोग न्यूक्लियर से बना रहे हैं, डैम से बना रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी कोयले का फायदा ही नहीं उठाया। हमें चाहिए कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बिल्कुल खामोश है, तो हम इससे ये फायदा उठाएं कि हम अभी कोयले से बिजली बना लें। ठीक है ना? ये मैं गलत बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। सर जी, मैं आज पढ़ रहा था तो हम मोस्ट अफेक्टेड 8 कंट्रीज में से हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अफेक्टेड हुए हैं। और आज की न्यूज़ सर कि 60 तक कराची जो है ना, अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो कराची जो है ना तकरीबन टोटली समंदर के उसमें आ जाएगा जद में। तो सर क्या आप नहीं समझते इन वन एंड हम वन एंड तो एक तौर पे नसार कर रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरे एंड पे है सर, वो काफी नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए? मैं समझ आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ। मैंने बताया पाकिस्तान 7 टॉप 7 कंट्रीज में है जो मोस्ट वल्नरेबल है, उनमें हम शामिल हैं। लेकिन जिस कोयले से हम बिजली बनाएंगे, उस कोयले से जो मैं देख रहा हूँ जो रिजल्ट आएंगे वो इतने खतरनाक नहीं है जितने आप सिर्फ कोयले को गलत नहीं समझेंगे। कोयले की वजह से पाकिस्तान में पोल्यूशन आ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसकी वजह बहुत और चीजें हैं कोयला के अलावा। आप क्या पता है, आप क्या कितना आप अपना जो है कितने टन आप मुझे बताइए कि कितने टन, हजारों लाखों टन आप रोजाना कचरा जो है वो समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं, जिससे क्लाइमेट में खराबी पैदा हो रही है। आप क्या नाम है, सीवरेज का पानी जो है, जो हम गटरों का जो ये पानी होता है, ये डायरेक्ट पानी बहा देते हैं समंदर के अंदर, जो कि खतरनाक है। दुनिया भर में इसी पानी को, जो गटर का पानी होता है, उसको रिफाइन किया जाता है और उसमें से 40% पानी को इस्तेमाल किया जाता है दोबारा। अब आप कहिए गटर का पानी दोबारा इस्तेमाल करें, दुनिया करती है, रिफाइन करती है उस पानी को, और जो पानी गंदा होता है तो बिल्कुल ही गंदा हो जाता है, उसको भी साफ करके समंदर में फेंका जाता है। हम डायरेक्ट गंदा पानी समंदर में फेंकते हैं, रिसाइकिल नहीं करते। पानी को रिसाइकिल करना है। आप सिर्फ एक कोयले को पकड़ के नहीं बैठे, आप अगर कोयले से बिजली बनाते रहें और अपने इन चीजों पे, कचरे पे और गंदगी पे, जो आपकी सीवरेज लाइंस हैं, इनके ऊपर रिफाइन कर लें, अपने प्लांट लगा दें, तो आपको ये मसला भी नहीं है। अब आपके पास मशीनें भी अवेलेबल हैं और 2-3 मशीनें आप बड़ी इंस्टॉल कर रहे हैं कराची में, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। इससे परेशान ना हो। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो बहुत सारे इश्यूज इकोनॉमिक्स के मैंने रिजॉल्व कर दिए हैं उसके अंदर ये बातें। तो आप मुझे वापस आते हैं गैस के ऊपर, तो आप कहेंगे गैस के ऊपर हम वापस आते हैं कि गैस का इशू बहुत बड़ा इशू है। हम इसे इंपोर्ट करते हैं, कितनी गैस इंपोर्ट करते हैं हम, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना? कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, किस किस मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, सब मैंने उसमें आपको देना है। तो वो आप गैस वीडियो जरूर देखिएगा, छोटी वीडियो है, समझ में आ जाएगी। वाटर के ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल, डैम के ऊपर तमाम डैम के बारे में बता दिया है। पाकिस्तान बादशाह डैम बना रहा है, पाकिस्तान दासू डैम पे काम कर रहा है, और पाकिस्तान इसके अलावा पाकिस्तान में तरबेला डैम को भी बेहतर किया जा रहा है। अगर ये डैम्स हमारे बन जाते हैं, बादशाह और क्या नाम है दासू डैम, तो आपकी बिजली की काफी हद तक प्रोडक्शन जो है वो बहुत पानी से होगी। इस वक्त जो हम बिजली बना रहे हैं वो ऑयल और गैस से बना रहे हैं ज्यादा, और कोयले से। वाटर का डैम के अलावा भी एक मसला ये है कि ट्रांसमिशन लाइन ही हमारी इतनी पुरानी हो चुकी है, जो आधी से ज्यादा सर वो मैं इसमें बता चुका हूँ ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर बता चुका हूँ।
आप लोगों को क्लास दे चुका हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन हमारी बहुत ओल्ड है, मशीनें हमारी ओल्ड हैं, और जो तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉपर का होना चाहिए, वो हम जो है वो कॉपर का नहीं, अल्युमिनियम का तार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप देखते हैं रोडों के ऊपर जो तार लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, उस पर तार लटक रहे हैं, वो सारे अल्युमिनियम के तार हैं। अल्युमिनियम के तार जो होते हैं वो बिजली पी जाते हैं। अगर आप मशीन से बिजली ट्रांसफर करेंगे तार के अंदर, जैसे आप इस्त्री का प्लग लगाते हैं, तो आप जो प्लग लगाते हैं इस्त्री का, तो उस प्लग से जो करंट निकलता है वो इस्त्री के अंदर जाता है। अगर आप तार जो है अल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, तो जितना आपने करंट देंगे इस्त्री को, उतना इस्त्री में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वो तार जो है वो उसमें फ्रिक्शन होती है, रेजिस्टेंस होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें तार अल्युमिनियम के हटाने पड़ेंगे, लेकिन अगर अल्युमिनियम के तार हटाते हैं, ये बहुत बड़ा खर्चा है। आपको कॉपर पे आने में बहुत बड़ा खर्चा। फिर ये प्रॉब्लम ये है कि वो तार जो कॉपर के आप लगाएंगे, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वो चोरी हो जाएंगे रात के रात, लोग काट के ले जाएंगे तार, लाखों रुपए के तार हैं, चोरी होना शुरू हो जाएंगे। बाहर के ममालिक में ये तार जमीन के अंदर है, इसलिए वो चोरी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ ये तार ओपन है रोडों के ऊपर, तो इसकी चोरी होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हमें मजबूरन अल्युमिनियम के सस्ते तार इस्तेमाल करने होते हैं। तो वाटर बिजली, मैं मानता हूँ कि हम बिजली जो बना रहे हैं वो हमारी ज्यादा है प्रोडक्शन, लेकिन उससे जो आउटपुट आती है वो कम आती है। इसकी वजह 2-3 है। एक तो ये है कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की, दूसरा ये मशीनें पुरानी है, तीसरा ये कि तार पुरानी, ठीक है ना, ये वजह है। एक और प्रॉब्लम सर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फ्रांस 80% जो है ना, 75% मोर देन, वो जो है ना बिजली अपने न्यूक्लियर उससे बनाता है, सिस्टम से। तो सर पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? मोर देन 5% से हम ऊपर ही नहीं जा रहे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर को डिफेंस इक्विपमेंट में महदूद रखा हुआ है, और बिजली हम बना रहे हैं 4% न्यूक्लियर से बना रहे हैं। देखिए एक बात चीज ये फिर बता दूं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतने अच्छे और इतने बेहतरीन नहीं है कि न्यूक्लियर से आप समझेंगे न्यूक्लियर से काम पे लग जाए। दूसरा चीज ये, हमारे पास न्यूक्लियर की कैपेसिटी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो हम पे इंडिया और फिर हमारे हम FATF में फंसे हुए हैं और हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया में तो मेडिसिन भी न्यूक्लियर से बन रही है, दुनिया में क्या नाम है दूसरी चीजें, क्रॉप्स भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इसलिए नहीं कर पाते कि हम बेसिकली न्यूक्लियर स्टेट हैं। और दूसरा ये कि अब जब न्यूक्लियर में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक मसले होते हैं इंटरनेशनल प्रेशर के, ये इंटरनेशनल प्रेशर है। दूसरी बात हमारे पास ह्यूमन, आप समझिए न्यूक्लियर की क्या आम आदमी मैं और आप बैठ के न्यूक्लियर में बैठ के बिजली बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है अभी ह्यूमन रिसोर्स की, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर है। हमारे पास बेस्ट ये है कि हम अभी क्या नाम है जो डैम्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि डैम आप बड़े बड़े बना लें, छोटे छोटे डैम भी बनाएं ताकि पानी को स्टोर करें और पानी से बिजली बनाएं। और पानी का इस्तेमाल सिर्फ कहाँ कहाँ होता है, बस खामोशी से सुनते जाइएगा। पानी के इस्तेमाल से कितने फायदे होते हैं। सबसे पहले कि आपकी जमीन जो है, जो आपकी बंजर बेकार पर जमीन है जिसपे आप वेजिटेबल और क्या नाम है फ्रूट्स ये पैदा नहीं कर सकते, जिससे आप क्या नाम है, मैं अभी 5 मिनट का जरा ब्रेक कर रहा हूँ, 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा हूँ। मेरे गेस्ट आए, मैं 5 मिनट का ब्रेक करूंगा। सब सुन रहे हैं? ओके सर, टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। 5 मिनट, कोई बात नहीं सर, कोई बात। जी सर। ये कराची में ना केपीटी के आपने देखा है ना, कराची में केपीटी के एरिया, वहां पे एक फेडरल गवर्नमेंट मैंने इस्लामाबाद ने एक जगह ले रखी थी बहुत पहले। उस जगह पे अब जो है बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और तकरीबन जो है चाइना के लोग उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो $3.5 अरब का है। और यहाँ होगा क्या, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा कि यहाँ पे
लो हाउसिंग, लो रेट के हाउस यानी कम कीमत के घर बनेंगे, और क्या नाम है यहाँ पे जॉब्स बहुत आएंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जॉब्स बहुत होंगी, ठीक है ना, और प्लस फिशिंग का बिजनेस बहुत प्रमोट होगा। तो ये इसके अंदर ये, और ये लोन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, ये चाइना के लोग यहाँ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जो आप दिखेंगे करंट अफेयर में। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसी महीने साल की। तो आप ये बताएंगे कि ये पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है केपीटी पे, तो ये अभी कुछ अरसे पहले इमरान खान ने कोशिश की थी कि सिंध के 2 इलाकों में, एक बदीन और बंडल का इलाका था, उसमें इमरान खान इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, और वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाता अगर वो इन्वेस्टमेंट आ जाती, लेकिन सिंध ने वो मना कर दिया कि वो सिंध की जगह थी। लेकिन यहाँ पे मना नहीं होगा, कराची सिंध के अंदर आता है, कराची में फेडरल गवर्नमेंट ने ये जगह पहले से ले रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सीपैक के थ्रू, सीपैक के नीचे पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है उसी एग्रीमेंट के अंदर ये आ रहा है, और ये $3.5 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और जिससे एक फायदा होगा। जाहिर बात है ये पैसा पाकिस्तान में आएगा डॉलर्स में, तो स्टेट बैंक ये पैसा ले लेगा, और ये पैसा स्टेट बैंक के काम आएगा लोन उतारने में, ऑयल को खरीदने में, गैस को खरीदने में, और उसके बदले चाइनीज को रुपए में पैसे दे देंगे। चाइनीज को तो पाकिस्तान में आके डॉलर की जरूरत तो नहीं है, वो रुपए में कन्वर्ट करवा लेंगे, स्टेट बैंक इस पैसे को डॉलर में अपने पास सिक्योर कर लेगा। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर इसमें एक इसके सवाल बाद था सर। पूछें सर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की सर, ये एफडीआई कंसीडर होगी? वुड इट बी कंसीडर एज एफडीआई? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये लोन नहीं है। वो चाइना के बिजनेसमैन यहाँ के बिजनेस नहीं है, चाइना के जो बिजनेसमैन है वो आके यहाँ काम, ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सर, ठीक है ना। ओप्पो के बारे में मैं बता दूं, ओप्पो जो है, ओप्पो का जो मोबाइल पाकिस्तान में बन रहे थे वो असेंबलिंग का काम हो रहा था। असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि स्पेयर पार्ट्स आते थे, हम इंपोर्ट करते थे, और हमारा डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता था, और माल पाकिस्तान आता था, डॉलर बाहर जाता था, डॉलर बाहर जाता था, पाकिस्तान के जो पास जो डॉलर की कमी होती थी। अब ओप्पो ने ये कहा है कि वो अपना प्लांट लेके पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉलर्स लेके पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये सारा काम मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में करेंगे। अगर ये पाकिस्तान काम होगा मैन्युफैक्चरिंग का सारा, तो इसमें जॉब्स बहुत मिलेंगी, हम लोगों को बहुत ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। तो टॉप 5 कंपनीज में आती है मोबाइल की, आपको मुझसे बारे में कुछ ज्यादा पता होगा मोबाइल के बारे में। और पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में सस्ता ओप्पो मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, बल्कि हम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। 50 लाख मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे पाकिस्तान से बाहर, जिससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएगा। ये भी अगेन एक वेरी गुड पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है ओप्पो की शक्ल में, और ओप्पो पाकिस्तानी कंपनी बन जाएगी और पाकिस्तान में काम करेगी, और पाकिस्तान को टैक्स भी देगी, पाकिस्तान को डॉलर भी कमा के देगी, पाकिस्तान को जॉब्स भी देगी। जो लोग जॉब करेंगे वो भी गवर्नमेंट को जॉब टैक्स देंगे अपनी तनख्वाह के ऊपर। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सैमसंग भी पाकिस्तान आ रहा है, सैमसंग भी असेंबलिंग का काम कर रहा था, अब सैमसंग भी पाकिस्तान आ रहा है। अगेन वही चीज है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, सैमसंग का मोबाइल भी सस्ता मिलेगा, यहाँ पे जॉब्स बहुत लोगों को मिलेंगी सैमसंग मोबाइल बनाने वाले काम में, इंजीनियर्स, फोरमैन, इलेक्ट्रिशियंस, सबको, अकाउंटेंट्स को, HR के आदमियों को जॉब्स मिलेंगी, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव बात है कि ओप्पो और सैमसंग पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। यस सर, हेलो। क्लियर है। एक्सपो 2020 में पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ है। जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास उसमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के बारे में वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में लोगों को पता नहीं था, वो समझते थे कि पाकिस्तान इंडिया का कोई पार्ट है। अब पाकिस्तान एक कंट्री के रूप में लोगों को पता लगा है, लोगों को पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के एक्सपो 2020 में बहुत कामयाबी हुई। लेकिन मुझे एक खान साहब के ऊपर एक एतराज है कि खान साहब IT को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। खान साहब जो है वो पाकिस्तान में होटल्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जिसपे पीछे है हमसे वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ET।
ईटी का मतलब होता है कि हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाए। पाकिस्तान के इंजीनियर जो बच्चे हैं हमारे, गुलाम इसाक खान, इकरा यूनिवर्सिटी और एनएलडी के बच्चे जो हैं, इन्होंने रोबोटिक्स में बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो हमें चाहिए कि एक्सपो 2020 में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रमोट कराएं। इंडिया इसमें हमसे पीछे है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेस में चाइना से पहले हम लोग गए थे, इंडिया से पहले स्पेस में पाकिस्तान गया था 1962 के अंदर। तो पाकिस्तान चाइना से और इंडिया से पहले स्पेस में गया था। तो पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज थी, अयूब खान का दौर था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखें पाकिस्तान में हमने वो टाइम मिस कर दिया। अब हम रोबोटिक में इंडिया से आगे हैं। तो ऐसा ना हो कि इंडिया हमसे बाजी ले जाए। हमको चाहिए ईटी के ऊपर भी जोर दें। आईटी के ऊपर हमारी पोजीशन इस दफा सबसे अच्छी है। पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफा आईटी की एक्सपोर्ट जो है 2 अरब डॉलर से ज्यादा की है। इस दफा 2.1 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है पिछले साल। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 3.5 बिलियन डॉलर अपनी जो है एक्सपोर्ट्स में आईटी की। इसमें अगर ईटी को भी शामिल कर लें तो पाकिस्तान 5-6 बिलियन डॉलर्स की पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ईटी के जो है इसे कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। ये स्पेस का मैंने लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान इजराइल और जापान के बाद तीसरा मुल्क है साउथ एशिया का जिसने क्या किया था, स्पेस में गया था स्पार्को की मदद से। 1962 अयूब खान का दौर था। देखिए अयूब खान की मैं बुराई भी करता हूँ, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वो मैं वहां पे उसे छोड़ता नहीं। जो अच्छी बातें हम बतानी चाहिए। 1962 में चाइना स्पेस में नहीं गया था, ना इंडिया गया था, पाकिस्तान स्पेस में जा चुका था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। सर ये विद द हेल्प ऑफ चाइना किया था सर, बताया जाता है। बताया जाता, चाइना ने हमें सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान चाइना के अंदर आपको बता दूं, चाइना हमसे अक्सर ये आप लोगों का ख्याल गलत है होता है। चाइना ने हमने एयर चाइना जो है हवाई जहाज, हमने चाइना को उड़ाना सिखाया है। पीआईए ने एयर चाइना को पाकिस्तान ने बनाया था, डेवलप किया था। और ये हबीब बैंक प्लाजा जो हमारी बिल्डिंग बनी थी, तो चाइना के सारे इंजीनियर्स पाकिस्तान आ गए थे और हमारे इंजीनियर्स को लेके चले गए थे हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग को देखे कि हमने भी इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना दी है। तो ये 1962 में पाकिस्तान जो था, इवन 1971 तक इंडिया जो था, याद रखिएगा, दुनिया में एक अनोखा मुल्क था जो सिर्फ रशिया के सपोर्ट में चलता था। लेकिन पाकिस्तान की 1971 तक दुनिया में सपोर्ट ज्यादा थी। और चूंकि पाकिस्तान कैपिटलिज्म के साथ था, इंडिया जो था रशिया के साथ था, कम्युनिज्म के साथ था, तो इंडिया इतना ज्यादा दुनिया में, याद रखिएगा, उसका एक्सपोजर नहीं था। 1971 के बाद इंडिया का एक्सपोजर बढ़ा और हमारा एक्सपोजर कम हुआ है। ठीक है ना। उससे पहले दुनिया वर्ल्ड में पाकिस्तान एक रैंकिंग में था। ठीक है ना। इस एक चीज, दूसरी चीज एक चीज समझा दूं, आगे बढ़ जाऊं तेजी से। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक्टर्स के बारे में आता है सवाल, अक्सर एग्जाम में पूछता है। वो एक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टेट एक्टर्स और एक होता है नॉन स्टेट एक्टर्स। इसका फर्क पता है आपको? जी सर। हैं? जी सर, जी सर। स्टेट एक्टर्स तो कहते हैं जो गवर्नमेंट है। इमरान खान स्टेट एक्टर है, आरिफ अलवी स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर कौन है? आपका जफर अब्बास, ये जेडीसी वाला, ये सैलानी ग्रुप आपका, ये जो वो लोग जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर बुरे भी हैं, ये जो जिहादी तंजीमें हैं, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और अच्छे लोग ईदी है, फातमीद है, जेडीसी है आपका, ये लोग, ये वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर मेरी वीडियो है अलग से, स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं ये आगे पढ़ाना है आपको। जी सर, नॉन स्टेट एक्टर्स में आपने जिक्र किया है कि वर्ल्ड बैंक भी है, ये कैसे है? इसलिए कि वर्ल्ड बैंक प्रेशर डाल सकता है ना। देखिए बहुत सारी चीजों पे पाकिस्तान के ऊपर वो वर्ल्ड बैंक प्रेशर डालता है। यूनाइटेड नेशन भी है, यूनाइटेड नेशन बहुत सारी जगह से पाकिस्तान के इश्यूज हैं इनसे उसमें मुदाखलत करता है। जंग हो रही होती है, आपको याद होगा 1971 की जंग हुई, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की और इंडिया की दोस्ती कराई। 65 की जंग में यूनाइटेड नेशन ने दोस्ती कराई। 48 के अंदर जो जंग हुई, यूनाइटेड नेशन ने रिजॉल्व कराया, दोनों मुल्कों पर प्रेशर डाला। तो वो ये कहलाते हैं नॉन स्टेट एक्टर, जो किसी मुल्क पे, किसी गवर्नमेंट पे
प्रेशर डाल सके। इसी तरह तंजीमें भी होती हैं, आपको पता है बहुत सारी लश्कर की, नाम नहीं लेना चाह रहा, रिकॉर्डिंग लेक्चर है, डोराई की तंजीमें होती हैं, अपने कैदियों को रिहा करवाती हैं कि हमारे कैदी रिहा करो, प्लेन हाईजैक कर लेती हैं। ये तो आप समझ गए ना। BLA हो गई, एनजीओ जितनी हैं, जी सर। जितनी एनजीओज हैं, सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रही होती हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से नॉन स्टेट एक्टर जो है वो नेगेटिव ज्यादा आ गए, वो हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना। सर एक और सवाल है। जो हाँ, आपने बोलिए। बताया था कि जो ओप्पो और एक्सपो सैमसंग जो चाइना यहाँ पे आके काम कर रहा है, चाइना की इतनी सारी मेहरबानियों की वजह क्या है? मतलब वहां पे क्या जमीन अच्छा, नहीं है या बहुत वहां बहुत पे बहुत ही वर्कर्स अच्छा, नहीं? बहुत 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 अच्छे। देखिए मैं बताऊं आपको, अमेरिका जो है वो इंडिया में काम करवाता है बेंगलोर में। वजह बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपका नाम क्या बेटा? सबाहत जावेद। सबाहत मैं यहाँ रखूंगा अपने पास काम करने के लिए। सच बताना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम तो मुझे सजदा करने पे आ जाओगी कि सर आप बहुत मेहरबान आदमी है, मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। अब जो लेकिन चाइना, अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएगा तो चाइना के जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। चाइना की लेबर बहुत महंगी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। चाइना अगर एक फैक्ट्री बनाता है चाइना के अंदर, तो उसे वो एक मोबाइल पड़ेगा फैक्ट्री में तकरीबन सपोज करो $50 का। पाकिस्तान में वो मोबाइल बनाएगा, वही मोबाइल उसको पड़ेगा $2 का। तो देखिए बिजनेसमैन कोई अपने मुल्क का फायदा नहीं सोचता। पाकिस्तान से बंगाल, देखिए 40% इस वक्त बंगाली जो बिजनेस में आगे निकल गए हैं हमसे, वो आपको पता है पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा हुआ तो लोग यहाँ से चले गए बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाके उन्होंने बिजनेस किया। वहां पे यही कराची के लोग हैं जो बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से आगे निकल गई। बांग्लादेश इस वक्त इकोनॉमी में 36 नंबर पे है, हम 42 नंबर पे हैं। तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे ज्यादा है, ठीक है ना, हम उनसे एक्सपोर्ट से पीछे हैं। लेकिन हम ये कराची के ही लोग गए ना वहाँ पे, ये सियालकोट के लोग गए ना बांग्लादेश। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे लेबर जो है सस्ता है, वहाँ पे लेबर 8,000 में काम करता है। आप यहाँ आपके मुल्क में 8,000 में कोई काम करेगा? आप करोगे 8,000 में काम? कभी नहीं करोगी। बंगाली 8,000 में काम करता है, जमीन पे सोता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, तो लोग सोचते हैं कि वहां जाके रहें। चाइना में इसी तरह पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड चाइना से कम है, इसलिए चाइना वाले पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। चाइना वाला अपना फायदा सोच रहा है कि यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ का मौसम अच्छा है। अब बफलो है, बफलो जो गाय भैंस, वो चाइना में नहीं रह सकती, मर जाती है वहाँ के मौसम के हिसाब से। तो चाइना जो यहाँ के गाय और भैंस और फार्म खोल रहा है, उसी खोल रहा है कि एनवायरमेंट पाकिस्तान का बड़ा कंड्यूसिव है कि यहाँ पे वो दूध पैदा करेगी। यहाँ पे जो गाय दूध पैदा करती है, अगर चाइना ले जाते हैं उसकी दूध पैदा करने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। एनवायरमेंट जो है एनिमल को इफेक्ट करता है, समझ में आया? ये भी बहुत बड़ा चीज, ये बहुत नहीं, मतलब आप सोचिए कराची के अंदर जो आबो हवा है वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में ज्यादा अच्छी सेहत होती है लोगों की। इसी तरह चाइना में जो सेहत जानवर की होगी वो सेहत खराब होगी, जो कराची के अंदर पंजाब साइड पे होगी वो बेहतर होगी। तो चाइना कोई हमदर्दी नहीं कर रहा है, चाइना एक बिजनेसमैन है और चाइना को एक चीज जरूरत है। वो क्या जरूरत है? वो ये जरूरत है कि चाइना देख रहा है कि एशिया में 2 बड़ी ताकतें, रशिया और इंडिया, 2 एक हैं। वो इतनी बड़ी ताकत है, अगर दोनों मिल गई तो चाइना का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना को एक न्यूक्लियर चाहिए अपने साथ मिलाने के लिए। वो पाकिस्तान को अपना सहारा ढूंढता है कि वो पाकिस्तान उसका एक सहारा बने, और पाकिस्तान पे इसकी मेहरबानी भी कर देता है कभी कभी। ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, इसको पॉलिटिकल गेम्स समझें। ये एनवायरमेंटल गेम्स हैं, पॉलिटिकल गेम्स हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत महंगी है चाइना। सर इसका मल्टीपल रीजन से कॉस्ट ऑफ, मैं ये समझ रहा हूँ सर, इधर टैक्स भी तो ज्यादा है सर, 70% हम टैक्स लेते हैं। उधर बिजली का प्रॉब्लम, टैरिफ बिजली में ज्यादा है। उधर बिजली के बांग्लादेश में मूव करने का हालात सही नहीं है, ना मुआफिक हालात हैं कराची के, और इस वजह से देखिए नहीं, इसको आप समझ रहे हैं, इसको ना सोचें ऐसा, आप बहुत नेगेटिव ना सोचें। चाइना आप जो कह रहे हैं कि कराची के हालात बहुत खराब है, आपको पता है जब सबसे ज्यादा मर्डर कहाँ होते हैं? अमेरिका में होते हैं। रेप्स कहाँ होते हैं? अमेरिका और इंडिया में होते हैं। अब वो लोग अपने इकोनॉमी का प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। आपने तो देखा नहीं होगा, या अमेरिका या गए होंगे या दूसरी जगहों पे, मैं तो देख चुका हूँ, मैं तो बाहर रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे सारे क्राइम्स होते हैं।
लेकिन वो लोग इतना प्रोजेक्ट नहीं करते जितने आप करते हैं। आप अपने मुल्क को बदनाम ज्यादा कर देते हैं। ऐसा अगर होता तो चाइना यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ओप्पो पाकिस्तान नहीं आ रहा होता, सैमसंग पाकिस्तान नहीं आ रहा होता। ये ऐसा नहीं है सर। ये सुना गया था कि चाइना तो आ नहीं रहा था, हमने इन्फोर्स किया चाइना को कि प्लीज मेहरबानी करें, इन हार्ड टाइम था हमारे पे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। वो भारत की तरफ जा रहा था। फिर फौज ने कहते हैं कि गारंटी ली है कि वी अश्योर यू दैट कराची विल बी ओपन ऑल ओवर द मंथ, सारा साल खुला रहेगा। देखिए आप इसमें मेरी बात सुन लें, मुझसे देखिए, मैं आपको मेरे ख्याल में अपने नक्शा नहीं देखा है कभी वर्ल्ड का। अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखने का भी बात ना करें, वर्ल्ड का नक्शा ये है कि चाइना जो है इस वक्त इंडस्ट्री लगा रहा है, चाइना को तेल की जरूरत है, हंगरी है चाइना तेल का। आप अगर वर्ल्ड देखें, वर्ल्ड के मैप पे देखें तो अरबियन सी से, अरबिया से जो तेल आता है वो पहले पाकिस्तान की तरफ आता है और इंडिया पाकिस्तान के बाद आता है, ठीक है ना। तो अगर उससे चाइना को ऐसा मुल्क चाहिए था जो अब बहुत ज्यादा अरब से जो तेल आए वो सीधा चाइना की तरफ चला जाए, तो वो गवादर से सीधा सुरंग खोद रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, तो वो दे जा रहे हैं चाइना। इंडिया और चाइना की दुश्मनी है। आप कैसे कह रहे हैं चाइना में इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन नहीं ज्यादा करेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया का डिस्प्यूटेड है बाउंड्रीज, जैसे पाकिस्तान और कश्मीर इंडिया का मुसीबत है, बॉर्डर पर इनकी सीधा तिब्बत का एरिया जो है और बहुत सारे एरियाज जो है चाइना और इंडिया के डिस्प्यूटेड है। चाइना और इंडिया की जंग हुई है, बहुत बड़ी जंग हुई है 1962 के अंदर। उस जंग के अंदर चाइना ने इंडिया को जो था बुरी तरह मारा था और इंडिया के बहुत सारे इलाकों पे छीन लिए थे। वो इनका डिस्प्यूट 1962 से चला आ रहा है। चाइना और इंडिया की दोस्ती नहीं है, उनके ताल्लुकात बॉर्डर्स पे खराब है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। अब ये जी बोले सर। ये कहा जा रहा था कि फौज ने गारंटी ली थी, हमारे पास हार्ड टाइम था, इस वजह से वी नीड टू लुक टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमने मगरब की तरफ से अपना पैराडाइम शिफ्ट किया और वी लुक टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब चाइना और एशिया की तरफ अभी हमारा इंफ्लुएंस कुछ ज्यादा हो गया है इस वजह से। वो इसलिए हो गया है कि इंडिया के अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ गए थे, तो हमारा सर्वाइवल ये था कि आप इंडिया चाइना से दोस्ती करें। और चाइना आपको मैं बस ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है, हमारा टाइम 10:30 तक का है। देखिए एक चीज सुन ले, 1962 के अंदर जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि कश्मीर को उठा लो, हम इंडिया को मार रहे हैं, इंडिया पिट रहा है, तुम कश्मीर को उठा लो। तो पाकिस्तान ने कश्मीर को नहीं उठाया, अयूब खान ने नहीं उठाया। और शहाबनामा पढ़िएगा, उसमें पूरी डिटेल इस बात पे। सुने मेरी बात, बोले नहीं क्यों नहीं उठाया? उसकी वजह ये थी कि अमेरिका का ये प्रेशर था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना जो है किसी भी तरह, अमेरिका को पता था, अमेरिका वाले 100 साल आगे देखते हैं, अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना जो है किसी भी तरह मजबूत हो, और अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता और कश्मीर छीन लेता और पाकिस्तान का जो इंडिया से मसला था वो रिजॉल्व हो जाता और चाइना और इंडिया की लड़ाई रहती। लेकिन चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना इस जंग में मदद करे पाकिस्तान चाइना की, तो अमेरिका ने उसे मना कर दिया कि आप इस जंग में मत पड़े और चाइना को और इंडिया को लड़ने दें। तो चाइना से अमेरिका के कभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, ये बात एक चीज सुन ले। और दूसरी चीज ये थी कि अमेरिका को ये मसला था कि चूंकि पाकिस्तान के फेवर में भी एक चीज गई, वो ये गई कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कैसे बना लिया। लोग कहते हैं अमेरिका ने मना क्यों नहीं किया, तो अमेरिका ने इसलिए नहीं मना किया कि जब रशिया ने बम बना लिया एटम, और चाइना ने बना लिया एटम बम, और इंडिया ने बना लिया, तो अमेरिका को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो अमेरिका का अपना जासूस हो, जो इनको काउंटर कर सके। तो पाकिस्तान को अमेरिका ने जानबूझकर रोका नहीं और चाहा कि वो बम बना ले। अब कहानी उलट हो गई कि पाकिस्तान चाइना के गोद में जाके बैठ गया, अमेरिका से इंडिया के ताल्लुकात हो गए। अमेरिका ने इंडिया से इसलिए ताल्लुकात अच्छे किए कि अमेरिका का बायर जो है बहुत बड़ा इंडिया है, इंडिया की आबादी ज्यादा है, इंडिया बहुत सारा माल अमेरिका से खरीदता है, असला खरीदता है। तो अमेरिका ने इसलिए, और पाकिस्तान से अमेरिका का कोई इंटरेस्ट जो था वो यही था कि रशिया से था, वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया रशिया को ज़ियाउल हक के पीरियड में, तो वो वाला मामला हल ही हो गया। तो अब पाकिस्तान की ऐसे अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं रही थी, इंडिया की जरूरत उसे ज्यादा पड़ गई थी, क्योंकि अब तो नजर आ रहा है कि चाइना एक पहाड़ बन गया है, रशिया एक पहाड़ बन गया है,
तो अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना की तरफ ज्यादा है, तो ये चाइना सॉरी इंडिया की तरफ ज्यादा हो गया। वरना इंडिया पाकिस्तान इंडिया का अब हम अंदाजा करें, एक जगह अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है, कभी उसके एंटी हो जाता है, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। पहले पाकिस्तान में इंटरेस्ट ये था कि वो रशिया को काउंटर कर ले, इसलिए उसने एटम बम बनने दिया। अब वो पाकिस्तान के एटम बम की तरफ देख रहा होता है कि नहीं इसको खत्म करो, ये करो वो करो। तो ये टाइम टू टाइम देखिए, जो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स होती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है, हर 10 साल बाद वो चेंज हो चुकी होती है। तो इसलिए अब ये कहना कि पाकिस्तान ने चाइना से कहा कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट करो, हाँ ये था, चाइना के ये रिजर्वेशन थे कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न है, आपके मुल्क में हालात थोड़े खराब हो जाते हैं, तो उस पर फौज ने गारंटी दी थी, क्या नाम है, बादशाह डैम के लिए और दासू डैम के लिए नहीं दी थी सी पैक की। वही हुआ देखे कि दासू डैम पे 9 चाइनीज मारे गए, दासू डैम के ऊपर। अब दासू डैम को भी सी पैक का पार्ट बना दिया है, तो अब वो पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तान फोर्स दे रही है, काम शुरू हो गया दासू डैम का। बादशाह डैम बन गया, दासू डैम बन गया, उसके बाद नीचे और उसके नीचे तरबेला डैम, ये तीनों डैम अगर बन गए तो पानी का इश्यू खत्म हो जाएगा। एक जानवर के इश्यू बड़ा हमारे बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि हम मीट का ऑर्डर हमारे पास बहुत बड़ा है। पूरा मीट की जो इंडस्ट्री है दुनिया में वो 750 बिलियन डॉलर की है, मुस्लिम हलाल मीट की। वो हम अब टैप अप नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जानवर नहीं होता है पानी पिलाने के लिए। हमें जानवर को पाल रखने के लिए पानी जरूरी है और घास जरूरी है, घास को पानी की जरूरत है। तो पानी की वजह से हमारा जो है वो जानवर भी पलेगा, घास भी उगेगी, हम वेजिटेबल में भी खुद मुख्तार हो जाएंगे, हम फ्रूट में भी खुद मुख्तार हो जाएंगे, हम बिजली खुद प्रोड्यूस करेंगे, ऑयल और गैस को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो ये पानी वाटर के क्राइस, वाटर और फिशिंग में हम एक्सपोर्ट में आ जाएंगे, फिश पैदा करेंगे जब हमारे पास वाटर आ चुका होगा। तो ये मतलब ये मल्टीपल जो है वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह कि जब हम दासू डैम और क्या नाम है बादशाह डैम 2028 में बन जाएगा, दासू डैम 2025 में बन जाएगा। आई एम लुकिंग वेरी गुड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान 2030 कहते पाकिस्तान की बिजली जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर की क्लास एंड हो गई है क्या? एक मिनट सर से ना मैसेज करके पूछता हूँ कि आप जो है वो ऑफलाइन क्यों हो गए, मतलब के सामने क्यों नहीं आ रही स्क्रीन। एक मिनट। सर जो हैं वो स्टूडेंट्स सर जो हैं वो ऑफलाइन जा रहे हैं, तो आई थिंक सर का नेट ऑफ हो गया है क्या, तो अभी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है, तो अब देखो अभी तो ऑफलाइन जा रहे हैं, आई थिंक नेट बंद हो गया होगा। वही 10:30 तक क्लास होनी थी। सर ने कहा था कि आई थिंक हमारे पास टाइम लिमिट है, तो 10 सवा 10 बजे सर ने कहा था, तो अब नेट ना उनका ऑफ जा रहा है। अब ये नहीं पता कि उनका नेट ऑफ हो गया, शायद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज तो किया है। हाँ यही लग रहा है कि सर ने जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, सो आई थिंक हमें भी जाना चाहिए। 10:30 तो हो गए। Students, kindly wait for few minutes. If अगर सर का इंटरनेट गया है तो he might join within few minutes. लेकिन अगर वो कुछ देर तक ज्वाइन नहीं करते, then I'll end the class and lecture will be uploaded soon. As I mentioned before, sir might be having some internet problems. If you guys want to wait, then wait for a few minutes. After some time, I'll end the class.
अच्छा सब सुने, मैंने सर को जो है वो अभी कॉल की है और सर कह रहे हैं क्लास एंड हो चुकी है, सो क्लास हैज एंडेड, सो आप सब जा मतलब कि ऑफलाइन हो सकते हैं, ठीक है, सर से मेरी बात हो चुकी है, तो क्लास एंड हो चुकी है। Thank you guys.